ساتھ کرنا چاہتے تھے کہ اپنی پارٹی جو 8 مارچ کو وجود میں آئی، 25 مارچ کو لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑی سی لوگوں کے ساتھ تانا بانا باندھنے میں بادھائیں آئی، کیونکہ we strictly followed what was the COVID protocol. But in between, we thought we should still come and share some views with you. آج آپ کے مادھیم سے میں بھارت سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ 5 اگست کو 1 سال ہونے والا ہے جب ہماری اسٹیٹ ہوڈ ہم سے چھینی گئی. اپنی پارٹی کی یہ مانگ ہے کہ اسے ہمیں اس دن واپس دیا جائے، کیونکہ جو ری آرگنائزیشن ایکٹ تھا وہ بھی 1 سال کے لیے ہی تھا، اور ہمیں حق ہے کہ اس ریاست کو اپنا درجہ وہ واپس ملے جو ہمارے پاس سب سے پہلے ہندوستان میں تھا. جہاں تک پینڈیمک کووڈ کا تعلق ہے، میں سراہنا کرنا چاہوں گا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے انیشلی اچھے سٹیپس لیے، لیکن جو کوارنٹائن سینٹرز بنے، لوگوں کو جس حال میں ان کوارنٹائن سینٹرز میں رکھا جا رہا ہے، تو وہ ایسے لگ رہا ہے، انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو یہ پیشنٹس بدقسمتی کے سامنا جن کو ہو رہا ہے وہ شاید انسان نہیں ہیں. تو ہماری مانگ ہے پارٹی کی کہ کوارنٹائن سینٹرز کی حالت ٹھیک کی جائے، اور میں عوام سے آپ کے مادھیم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پروٹوکال ہے کائنڈلی فالو کریے، کیونکہ ہم اس سٹیج میں انٹر ہو چکے ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا نمبر بھی بڑھ رہا ہے اور ہماری ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ رہی ہے. زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اسے بچانے کے لیے میری اپیل ہے لوگوں کو اسے اسٹرکٹلی فالو کیا جائے. لوگوں کے ایشوز ہیں، پینڈیمک ہو یا نہ ہو، پینڈیمک ہوتے زیادہ ایشوز ہیں. جو دہاڑی کا مزدور ہے، جو دہاڑی کا دکاندار ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے یا پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے ہیں، پچھلے 4 مہینے سے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جموں کشمیر سرکار کیوں کچھ نہیں کر رہی ہے ان کے لیے. کیا کسی کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے؟ کوئی بھی ایسا اکنامک پیکیج نہیں ہم نے دیکھا جو عام آدمی جو سفر کر رہا ہے، جو ڈیلی ویجر ہے، جو ہمارا ریڈی والا ہے، جو ہمارے دکاندار ہیں، ایون ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں. اس ریاست کی سب سے بڑی آمدنی ٹورزم سے ہوتی تھی، چاہے وہ کٹرا میں ہمارے یاتری جو آتے تھے ان سے ہوتی تھی، یا چاہے وہ کشمیر میں گلمرگ یا پہلگام یا دوسری جگہوں کو دیکھنے کے لیے جو سیاح آتے تھے. ہوٹل بنے پڑے ہوئے ہیں، خالی ہیں، انٹرسٹ چل رہا ہے، ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں. تو میری مانگ ہے کہ کم از کم جو فکسڈ کاسٹ ہے، ان لوگوں کے فکسڈ کاسٹ کو گورنمنٹ 50% سبسیڈائز کرے، اور جو بجلی دکاندار کو ہے یا پرائیویٹ سکولز کو ہے یا ان ہوٹلوں کو ہے، ڈیفر پیمنٹ نہیں کی جائے، پیمنٹ ویو آف کی جائے. ڈیفرمنٹ تو بہت آسان ہے، جیسے ہمارے ہندوستان کے فائنانس منسٹر نے کیا، لون ری پیمنٹ ڈیفر کی. میں ان سے بھی مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ شاید جموں کشمیر کی حالت ایسی نہیں ہے کہ انٹرسٹ بھی لوگ دے سکیں. انٹرسٹ کو ویو آف کیا جائے، کیونکہ یہ کوئی کنسیشن نہیں ہے کہ لون کو ڈیفر کیا جائے، اس انٹرسٹ پہ بھی انٹرسٹ چل رہا ہے. عام لوگوں کی جو حالت ہماری ریاست میں ہے پہلے سے ہی خراب تھی، کیوں ہے؟ وی ہیو این ان ریسپانسو بیوروکریسی، جن کا کوئی بھی تانا بانا عوام کے ساتھ نہیں ہے، بالکل بھی کوئی سنوائی نہیں ہے. افسر فون نہیں اٹھاتے ہیں، افسر بات نہیں سنتے ہیں. روزمرہ کی چاہے پانی کی کہیں دقت ہے، جموں میں اس گرمی میں پاور کٹس جو ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھے ایسے. اسی طرح باقی جو ڈیولپمنٹل ورکس ہیں نہ کے برابر ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا. تلنگانہ میں بھی کووڈ ہے، اور مجھے اوسر ہوا، ایک دوست نے وہاں سے مجھے ویڈیو بھیجا. ان 4 مہینوں میں تلنگانہ سرکار نے
ड्रेन सब नए बनाए, अंडरग्राउंड ड्रेन्स बनाए, अंडरग्राउंड केबलिंग की और पूरी मैकडेमाइजेशन स्टेट की। क्यों? उन्हें लगा कि आज ट्रैफिक बंद है, आज वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो कभी नहीं हो सकते हैं, जब लोग सड़कों पे हो तब नहीं हो सकती हैं। क्या यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार में किसी को ये नहीं लगा कि ये चीज़ हो सकती है? अफसोस की बात है कि कोविड की आड़ में सब चीज़ को पीछे धकेला जा रहा है। हमारे स्कूलों का हाल, बच्चों का जो कैरियर है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वैसे ही हम 5 अगस्त से पहले हमें कहते थे आप बंद हो, अब लॉकडाउन उसको नाम हो गया। पहले क्रैकडाउन था, अब लॉकडाउन है। फ़र्क खाली C और L की आ गई, और कोई फ़र्क नहीं है। 4G हमारे लिए अब मुझे लगता है ऐसी चीज़ बन गई है जैसे हम चांद सूरज ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे बच्चे बाहर से आए, बाकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों को उससे भी महरूम किया गया है। मेरी पुरजोर अपील है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारी सरकार को चला रहे हैं, कि सज़ा की एक इंतहा है, इस इंतहा को अब ख़त्म करिए। कम से कम बच्चों को 4G दीजिए ताकि इनके कैरियर और ख़राब ना हो जाएं। हमारे बच्चे कुछ विदेश में पढ़ते थे, वो भी वापस आ गए हैं, उनके क्लासेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी फीसें देकर भी वो महरूम है, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 4G अवेलेबल नहीं है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है कि 72 साल की जो सियासत रही है कि कश्मीर को जम्मू से लड़ाओ और जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, फिर तरह तरह के डिसीजंस में ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अपनी पार्टी इसीलिए वजूद में आई है क्यों आज कोई विवाद नहीं है। जम्मू की आवाम चाहती है कि हमारी स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी आवाम चाहती है स्टेटहुड बहाल हो जाए, जम्मू की आवाम चाहती है कि हमारे लैंड्स की राइट्स हमारे पास ही रहें, जॉब्स हमारे पास रहें, यही कश्मीरी चाहते हैं। आज कोई विवाद, इमोशनल नारा नहीं है। मेरी आपके माध्यम से दोनों खित्तों के आवाम से गुजारिश है कि किसी के भी जज्बाती नारों में ना आइए, और जो साजिशी अनासिर आज भी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि ये दो खित्ते आपस में लड़े, मैं उनको भी कहता हूं कि आपकी साजिश अब कामयाब नहीं होगी। ये आज 72 साल बाद का जम्मू कश्मीर है। आज की जो लोग यहाँ हैं, जो आज की यूथ यहाँ है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या चाहिए। उनकी तरजीह इमोशनल नारे नहीं है, उनकी तरजीह डेवलपमेंट है, उनकी तरजीह है उनकी एजुकेशन, और उनकी तरजीह इस रियासत की तरक्की। और उसमें मैं उन सब का साथ चाहता हूँ। आज अपील करता हूँ सबको कि आज एक ऐसी पार्टी आपके सामने आई है जो कोई इमोशनल नारा नहीं, एक ही नारा कि हम एक हैं, चाहे जम्मू वाले हैं, चाहे कश्मीर वाले हैं, चाहे किश्तवाड़ वाले हैं, चाहे डोडा वाले हैं, चाहे राजौरी वाले हैं, पुंछ वाले हैं, या कुपवारा वाले हैं, या अनंतनाग वाले हैं। हम एक ही रियासत के बाशिंदे हैं और हमारी रियासत ली गई है, हमें मिल के ये रियासत वापस लानी है। ये सबसे बड़ी तरजीह है। उसके बाद इमीडिएटली एक इलेक्शन किया जाए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम नहीं कहते हैं कोई चोर दरवाजे से किसी को नहीं, हम कहते हैं लिया जाए। हमें हक है जो पूरे हिंदुस्तान में है, डेमोक्रेसी हमें भी दी जाए। वी हैव एनश्राइंड राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें अब टोल पोस्टों को ही देखना है कि खाली टोल पोस्ट हमारे लिए आएंगे। बदकिस्मती की बात है, जो कहते थे कि हम जम्मू की हितों की रक्षा करेंगे, वो अब क्या इसी ज़रिए से रक्षा कर रहे हैं? उन्हें और कोई ज़रिया नहीं लग रहा है जम्मू के हितों की रक्षा करने की। आज भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, छोटे छोटे मसलों पे कैट के बेंच बनते हैं, जम्मू कश्मीर का बेंच बनता है, हम खुश हैं। चंडीगढ़ से पहले वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने फैसला लिया कि उन्होंने जम्मू में भी बनाया, और हमें उम्मीद है कि जल्दी कश्मीर में भी बनेगा। क्यों? दोनों खित्ते हमारे लिए, तो दोनों खित्ते इंपॉर्टेंट हैं। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, आज देखिए कोविड पेशेंट्स को किन हालात में रखा जाता है अस्पतालों में। उन अस्पतालों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो उस इंतज़ामिया को जो चलाते हैं, जो मुझे नहीं पता है कौन है, क्यों यहाँ आज ये भी नहीं पता लगती है कौन रन कर रहा है इस ब्यूरोक्रेसी को। क्यों ये ब्यूरोक्रेसी इतनी डिवाइडेड है कि यहाँ आज आपको पता ही नहीं है कौन क्या चला रहा है। ये ना हो कि लोग उठें और अपने हाथ में ले लें। जब
सर के ऊपर से पानी हो जाएगा तो लोग उठेंगे और हाथ में ले लेंगे, क्यों, जान बचाना हमारा फ़र्ज़ है और हम हर आदमी की जान, हर आम आदमी की जान बचाने के लिए सामने आए हैं। अब चूँकि हम उस स्टेज में हैं जहाँ आए दिन हमें कहा जा रहा है कि बीमारी आज बढ़ गई, कल बढ़ गई, परसों बढ़ गई, एक हमें क्लियर रोड मैप बताया जाए कि आखिर हमारी इकॉनमी को वापस कैसे खोलें। दुनिया भर में ये स्टेटमेंट है कि साहब इकॉनमी भी चलानी है, ये भी चलाना है। आज तक अभी हम नहीं देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को वापस रेल्स पे लाने के लिए कोई रोड मैप दिया जाए। ये भी मेरी